to be very important session. In this session, we will discuss the radius ratio rules and we will discuss how to determine density in a crystal, and later on we will discuss some important ionic compounds. So let us start the topic, that is determination of density first. पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे इन केस ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप नोट डाउन करो हाउ टू डिटरमाइन डेंसिटी। तो पहले हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे। तो अगर हमें सॉलिड स्टेट में किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू जेड इंटू mm. What is this mm? This is molar mass divided by a cube. What is this a cube? It's edge length into Avogadro number. So यहाँ पे आप लिख सकते हो Z is equal to, Z is the number of atoms per unit cell. It's number of atoms per unit cell. It is number of atoms per unit cell. तो किसी भी यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा सो Z is equal to 1. अगर मैं BCC की बात करूंगा, हमने देखा था उसमें Z is equal to 2. अगर हम FCC की बात करेंगे तो हमने देखा था Z is equal to 4. Isn't it? These are three cubic system जो हमें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं, जो हमने डिस्कस किए भी हैं, उनका Z कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट व्हाट इज mm? दिस mm इज मोलर मास। तो अगर हमारे पास मोलर मास दिया गया है, दिस इज मोलर मास। एंड द थर्ड थिंग इज दैट्स a क्यूब। व्हाट इज a? A is the edge length of the crystal. तो मैंने आपको बताया था edge length of a crystal. So if you have not read the previous lectures, you can watch the previous lectures about this edge length and molar mass of a crystal. Edge length and this NA, it is Avogadro number. It's equal to 6.023 into 10 to the power 23 particles, isn't it? So यहाँ पे अगर इन values को substitute करेंगे, then we will be able to determine density of a crystal. Or we can determine Z from this formula. तो इस formula से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? या तो हम this density it can be determined, or we can determine the Z, that is the number of atoms. अगर हम number of atoms निकालेंगे तब हम कह सकते हैं कि कौन सी structure को belong करता है, and we can determine the edge length of the crystal. Even we can determine the molar mass of the crystal. These are the things. So let us solve one question based on this concept. तो मेरे पास question जो है, तो for example I have a crystal. इसकी डेंसिटी जो है इट इज गिवन, डेंसिटी इज 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल दैट इज गिवन 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड एज लेंथ A इज गिवन, इट्स इक्वल टू 4.80 एंगस्ट्रॉम. इट्स इक्वल टू 4.80 एंगस्ट्रॉम. तो वन मोर थिंग इज गिवन, दैट्स मोलर मास ऑफ दिस क्रिस्टल. इट्स अ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. सो आई हैव अ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. One more thing is given, that is molar mass of this crystal, that is 56 grams. This is the molar mass, and we have to determine to which crystal system this belongs. So what we have to determine, to which cubic system this belongs. Cubic system, this calcium oxide belongs. To which cubic system it belongs, and we have to determine. Number second, we have to determine number of calcium dipositive ions and number of oxide ions present in this crystal system. So basically हमें ये बताना है कि इनमें से किसको belong करता है, मतलब we have to determine Z. So इन सारे values को हम यहाँ पे substitute करके इस question का solution find करेंगे. We'll try to solve this. So हमारे पास जो density है, density, this density it is equal to, so I'll write the formula first. Z is rho is equal to Z is equal to Z into mm divided by A cube into N. So basically I will substitute the values over here. So rho is equal to 3.35 gram per centimeter cube. Isn't this? Is the unit of density gram per centimeter cube. And Z हमें निकालना है into mm. मोलर मास यहाँ पे दिया गया है, it's 56 grams. बेसिकली जब पे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट्स को साथ साथ लिखना चाहिए. और हमारे पास A है, A is given, edge length is given 4.80 एंगस्ट्रॉम, isn't it? तो इस एंगस्ट्रॉम को मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू वन बिगर यूनिट. तो वी नो दैट अगर हम एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, तो लेट मी कन्वर्ट दिस. तो इस एंगस्ट्रॉम को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी 4.8 into 10 raised to power -8
centimeters. 1 angstrom is equal to 10 raised power minus 8 centimeters, isn't it? तो बेसिकली मैं इस a का वैल्यू लिखूंगा 4.8 × 10 रेज़ पावर माइनस 8। तो इसका क्यूब है तो मुझे a क्यूब लिखना है, तो मतलब इसका क्यूब तो सेंटीमीटर का भी क्यूब आएगा, इजंट इट, इसका क्यूब। तो a क्यूब के बदले मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.8 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 का होल क्यूब। बट साथ में इसका यूनिट क्या है, इट इज सेंटीमीटर क्यूब इंटू Na मुझे पता है 6.02 × 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, 6.02। बस अब इसको सॉल्व करना है, z को निकालना है। देयरफॉर आई कैन राइट ओवर हियर z कैन बी इक्वल टू, तो इस 35 से इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, 3.35 × 4.8 × 4.8 × 4.8 मतलब 4.8 का क्यूब है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 × 3 दैट इज 10 रेज़ पावर माइनस 24 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 into Avogadro number, this Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23। तो उसके बाद नीचे क्या आएगा, दिस विल कम बिलो, तो नीचे आपका आएगा डिवाइड बाय 56। तो इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट z अप्रोक्सीमेटली z इक्वल टू 3.98। तो हम इस 3.98 को अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं z इज इक्वल टू 4। वी कैन राइट इट z इज इक्वल टू 4। सो z इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, दिस कैल्शियम ऑक्साइड बिलोंग्स टू FCC टाइप ऑफ लेड्स, FCC और CCP टाइप ऑफ लेड्स, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसमें होते हैं, isn't it? FCC टाइप ऑफ लेड्स, इफ Z इज इक्वल टू 4 FCC टाइप ऑफ लेड्स। अब FCC टाइप का लेड्स का मतलब क्या है, FCC टाइप ऑफ लेड्स का मतलब Z इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 4 का मतलब नंबर ऑफ आयन जो यहाँ पे हैं दैट विल बी 4, मतलब कैल्शियम 2 प्लस आयन दे विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे ऑक्साइड आयन है O2 माइनस आयन दे विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? सो यहाँ से हमें हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। So this was how we can determine density related problems. I hope कि आपको ये understand हुआ होगा। So similarly you can solve questions how to determine density. You can solve questions how to determine A cube. So next जो मेरा लेक्चर आएगा ना उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि A cube जो है, जिस A cube इसका जो बड़ा ही वैल्यू होता है इसको कैसे with the help of tricks सॉल्व करेंगे। So that will be dealt in the next lecture. तो नेक्स्ट है हमें इस डेंसिटी के बाद जो डिस्कस करना है, that is where we will discuss radius ratio rules. Next हम डिस्कस करेंगे radius ratio rules. Next हम डिस्कस करेंगे radius ratio rules. So next जो हमारा टॉपिक है that is radius ratio rules. Radius ratio rules. This is very important topic for your competitive exams. Since competitive exam की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे इनकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो रूल का। तो अगर डेरिवेशन पे जाना है तब मैं जो 12th क्लास की सॉलिड स्टेट डिस्कस करूंगा वहाँ पे मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा, बट नो नीड टू डेरिवेशन, नो नीड टू डेराइव फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो रेडियस रेशियो रूल की बात करेंगे। यहाँ पे हम रेडियस रेशियो की पहले बात करेंगे, रेडियस रेशियो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वॉइड है, एक्चुअली इसमें वॉइड्स का कंसेप्ट है, ये मेरे पास void one, ये मेरे पास क्रिस्टल है। So these are three spheres. Spheres are treated as these solid particles, they are treated as spheres. So these are three spheres, they are touching each other. तो देखो ये मैं पैकिंग एक्चुअली कर रहा हूँ, these are three spheres, they are touching each other. बट अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे ये वाली जो जगह है, this is the empty space, isn't it? तो sphere is defined by radius, मतलब यहाँ पे इसकी रेडियस r होगी, इस बड़े वाले sphere की रेडियस r होगी। तो मैंने कहा था इन सॉलिड्स एनाइन्स टच ईच अदर, सो यहाँ पे जो ये r है दिस इज द रेडियस ऑफ एनाइन, दिस इज रेडियस ऑफ एनाइन। तो आपकी मर्जी है आप इसको r लिखो या r माइनस लिखो। सो r माइनस इज द रेडियस ऑफ एनाइन, इधर दिस इज r और इट इज r माइनस। अब हमारे पास ये स्मॉलर स्फीयर है, स्मॉलर स्फीयर कौन सा वाला है, जो हमारे पास वाइड रहेगा, दिस इज वाइड। तो वाइड की अगर हम रेडियस देखेंगे इसका रेडियस बहुत कम है, तो इस रेडियस को हम स्मॉल r प्लस से देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कैटाइन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैटाइन ही क्यों यहाँ पे है, बिकॉज वाइड जो होता है इट्स वेरी स्मॉल एंड कैटाइन्स आर स्मॉलर यूजुअली इन मोस्ट केसेस, 99% केसेस कैटाइन्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ एनाइन्स। तो बस इसी चीज को डिस्कस करना है, रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। तो रेडियस रेशियो यहाँ पे लिखेंगे दैट्स r प्लस बाय r माइनस, दैट इज रेडियस रेशियो, इजंट इट। तो इसी को डिस्कस करेंगे, इसके कुछ केसेस यहाँ पे आएंगे। तो रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ लाई करता है, इट कैन लाई बिटवीन 0.155 to 0.225,
0.224 or 225, 0.225. दिस इज द फर्स्ट रेडियस रेशियो। अगर इसमें रेडियस रेशियो लाई करता है तो ये हमारे पास होता है ट्राइगोनल वॉइड, ये हमारे पास होता है ट्राइगोनल वॉइड। देन दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगोनल वॉइड, दिस इज रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगोनल वॉइड। तो अगर आप इस रेडियस रेशियो की बात करेंगे, दिस इज रेडियस रेशियो, मतलब ये जो हमारे पास ट्राइगोनल वॉइड है ना, यहाँ पे जो r प्लस और r माइनस का रेडियस रेशियो है दैट शुड लाई बिटवीन 0.155 टू 0.225। अब बता, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो आपका एक कैटायन है, तो हाउ मेनी स्फीयर्स इट इज सराउंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज सराउंडेड बाय 1 स्फीयर, सेकंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। सो इन केस ऑफ ट्राइगोनल वॉइड, द ट्राइगोनल प्लानर भी आप कह सकते हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू 3। सो इन केस ऑफ ट्राइगोनल वॉइड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3। सो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो दूसरा हमारे पास है जो रेडियस रेशियो है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.225 टू 0.414। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब ये जो रेडियस रेशियो है इट इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप आपने वॉइड इसको मेरे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं यहाँ से टेट्राहेड्रल वॉइड बनाऊंगा, बेसिकली मुझे ऊपर से एक और सर्कल बनाना है, तब जाके ये जो वॉइड है इट विल बी कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स, सराउंडिंग स्फीयर्स। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी इक्वल टू 4। फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो उसके बाद जो हमारा रेडियस रेशियो लाई करता है दैट इज बिटवीन 0.414 टू 0.732। सो दिस इज फॉर ओक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज फॉर ओक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेसिकली इस वॉइड को मैंने डिस्कस किया है, इसको भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, इसको भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। दिस इज फॉर ओक्टाहेड्रल वॉइड एंड फॉर दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एंड द लास्ट वन इज 0.732 टू 1.00। इसको भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। दिस इज फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो इसके लिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो इसकी अगर हम फेमस एग्जांपल देखेंगे, इसकी फेमस एग्जांपल NaCl है, दैट्स नोन एज रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और इसकी हमारे पास फेमस एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, isn't it? This is very important to remember examples, it's very important। इसके अगर फेमस एग्जांपल देखेंगे दैट इज जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। अगर इसकी फेमस एग्जांपल देखेंगे दैट इज Be2O3। दीज आर द एग्जांपल। तो मैंने कुछ एग्जांपल उसको यहाँ पे लिखा, तो साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी खुद ही याद हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड, स्पार्लटाइट इसको कहते हैं। दिस इज नोन एज रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो व्हाई वी डिस्कस्ड दीज रेडियस रेशियो रूल्स, व्हाट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग दीज रेडियस रेशियो रूल्स? बेसिकली इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमें डिफेक्ट्स डिस्कस करने हैं। तो डिफेक्ट्स के लिए रेडियस रेशियोज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं कहूँगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट में रेडियस रेशियो इतना होना चाहिए, तो यू शुड नो व्हाट आर द रेडियस रेशियो रूल्स, इजंट इट? व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेडियस रेशियो रूल्स? तो इनसे मैं कौन सी चीज निकाल सकता हूँ? पहले देखो, इनसे मैं जियोमेट्री निकाल सकता हूँ, मतलब दे कैन टेल मी अबाउट द जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, दे कैन टेल मी अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रिस्टल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, जियोमेट्री मिल गई, दैट मीन स्टेबिलिटी मिल गई। तो देखो आप, यू कैन सी ओवर हियर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा होगा उतनी स्टेबिलिटी बड़ा होगा, मतलब दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल। क्लियर बात? यहाँ तक आई होप कि सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। आई होप कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई, इजंट इट? सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसी में, वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, हम आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स, isn't it? I'll give you 2 minutes to take screenshot, note down करो, so that हम आगे चलेंगे, हम इसका डिस्कशन करेंगे। दैट इज सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, अगेन दैट्स इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स। हेडिंग लगा इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स। इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। दिस विल बी मोर यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो मैं यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करूँगा, बहुत ही यूजफुल होगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
सो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंपाउंड है, मैं बात करूँगा NaCl की। NaCl हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। लेट मी फर्स्ट चेक क्या ये रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। फर्स्ट कंपाउंड अगर मैं बात करूँगा फर्स्ट कंपाउंड की, तो मेरे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस कंपाउंड को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस कंपाउंड में हमें देखना क्या है, पहले हम इसकी जियोमेट्री देखेंगे। अगर हम जियोमेट्री की बात करेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है इट अंडरगो CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट मतलब क्या है, ये आपका FCC होता है। तो मैंने कहा था अगर FCC होगा तो Z इज इक्वल टू 4। तो Z इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि इसमें सोडियम आयन्स भी 4 होंगे, इसमें क्लोराइड आयन्स भी 4 होंगे। पर यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट सेल में आपको 4 सोडियम आयन्स एंड 4 क्लोराइड आयन्स मिलेंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल आपको कितने आयन्स मिलेंगे, पर यूनिट सेल आपको कितने आयन्स मिलेंगे, सोडियम के 4 आयन्स, क्लोराइड के 4 आयन्स, isn't it? So this is very first important thing regarding सोडियम क्लोराइड। दूसरी जो हम बात करेंगे तो हमने देखा था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर Z4 है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रा, isn't it? जियोमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रा। तो हमने अभी रेडियस रेशियो रूल्स में देखा था कि Z इज इक्वल टू 4 FCC अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, isn't it? वी हैव सीन कि FCC अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस इट हैज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्लियर। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर की बात करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और वी कैन राइट इट 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर। 6:6 मतलब सोडियम के 6 आयन्स, क्लोराइड के 6 आयन्स। सो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पर यूनिट सेल में एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन है। सो द रेशियो, मोलर रेशियो बिकम्स 1:1, isn't it? तो यहाँ पे बात क्लियर। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनमें रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर सकते हो। सो द एग्जांपल्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ लिथियम, अगर हमारे पास लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, इनके हैलाइड्स। तो इनके हैलाइड्स एग्जांपल्स हैं, हैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स of alkaline earth metals of group second elements are known as alkaline earth metals। तो इनके ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। एक्सेप्शन यहाँ पे है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट हमारे पास बेरिलियम सल्फाइड है, दिस डज नॉट अंडरगो रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक्सेप्ट हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, दिस डज नॉट अंडरगो रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एक्सेप्ट हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, एक्सेप्ट हमारे पास अमोनियम हैलाइड है NH4X, these are exceptions। so this is the first type of the structure। इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो NaCl है it undergoes rock salt type of arrangement। तो रॉक सॉल्ट मतलब इसमें CCP अरेंजमेंट होता है, FCC होता है। FCC मतलब Z इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 4 मतलब नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेल, इसके 4 होंगे, इसके 4। सो इट्स 4:4 अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, दैट्स व्हाई वी कैन से 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। जियोमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड दीज आर एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप ऑफ सॉलिड है दैट इज सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ सॉलिड। अगर मेरे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे, इट अंडरगोज BCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो बस अगर BCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको मिल गया तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। देखो BCC का मतलब है Z इज इक्वल टू 2, isn't it? Z इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है, टोटल आयन्स 2 होंगे, मतलब इसमें एक आपको मिलेगा सीजियम प्लस आयन, एक मिलेगा आपको क्लोराइड माइनस आयन, isn't it? 1Cl माइनस आयन। क्लियर। तो मतलब एक सीजियम क्लोराइड आपको मिलेगा इसमें 1:1, मतलब एक सीजियम क्लोराइड मिलेगा, एक सीजियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मैंने बताया था कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8, isn't it? कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, तो इसका रेडियस रेशियो कहाँ पे लाई करेगा, 0.414 to
0.732 to 1, isn't it? तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखें। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे भैया, हैलाइड्स ऑफ सीजियम, हैलाइड्स ऑफ सीजियम जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज हैलाइड ऑफ सीजियम, हैलाइड्स ऑफ सीजियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, and we have example of titanium bromide, and we have example of this is thallium chloride, sorry, this is thallium bromide and calcium sulfide. This is not titanium, this is thallium chloride. So these are two solids which I have discussed. Now let me discuss third type of the solid, that is zinc blende type of the solid, that is ZnS. ZnS की बात करूंगा, isn't it? ZnS की बात करूंगा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो अगर मैं जिंक ब्लेंड की बात करूंगा, इट अंडरगो सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहीं से बस आपका सारा कुछ मिलता है। सीसीपी मतलब एफसीसी, एफसीसी मतलब Z इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 4 मतलब इसमें Zn2 प्लस आयन्स कितने होंगे 4, इसमें सल्फाइड 2 माइनस आयन्स कितने होंगे 4, मतलब इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 4:4, isn't it? रेशियो विल बी 4:4, मतलब इसमें आपको 4 जिंक आयन्स एंड 4 सल्फाइड आयन्स मिलेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखेंगे, मैंने एग्जांपल्स में बताया था रेडियस रेशियो में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ एग्जांपल्स आते हैं, बेरिलियम सल्फाइड, दैट्स वाई यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आती है। हमारे पास बेरिलियम सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, and we have copper halides, copper chloride, copper bromide and copper iodide. These are the examples. So these are certain important examples. Out of these examples are very important. Halides of copper, they are very important. So next discuss करते हैं, fourth example discuss करते हैं, that's most important, fluoride and anti-fluoride structure. तो fourth structure को discuss करते हैं, that's fluoride structure. फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड। तो बस एक बात हमें पता होनी चाहिए, इसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है, इट अंडरगोज सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगेन सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स Z विल बी इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 4, isn't it? It undergoes CCP type of arrangement, Z is equal to 4. तो बेसिकली आपको क्या जानना है रिगार्डिंग सीसीपी अरेंजमेंट, तो देखो क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ आयन है, कौन कौन सा आयन है, यहाँ पे आपको कैल्शियम 2+ मिलेगा, यहाँ पे आपको F- मिलेगा, isn't it? जो F- आयन्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड, दीज आर प्रेजेंट एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड, प्रेजेंट एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है F- आयन्स, THV, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बताओ मुझे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 2n, दिस इज V टेट्राहेड्रल, लास्ट लेक्चर में देखा था, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स V ऑक्टाहेड्रल दैट्स इक्वल टू n। तो व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसमें 2 × 4 दैट्स 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो फ्लोराइड आयन्स कितने होंगे यहाँ पे 8, isn't it? टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे 2n है, 2n मींस 2 × 4 दैट्स 8। Since fluoride ions are present at each tetrahedral void, therefore fluoride ions जो यहाँ पे होंगे इनका नंबर क्या होगा, that's 8। आपको 8 fluoride ions मिलेंगे। तो where are calcium ions present? At every element of CCP, they form CCP type of plates. These calcium ions they form CCP type of plates. Calcium ions form CCP lets. CCP lets means there can be 4 calcium ions because CCP मतलब Z is equal to 4, therefore there can be only 4 calcium ions. So what is the coordination number in case of fluoride structure? Coordination number is going to be of calcium fluoride, it is going to be 4:8, isn't it? Coordination number is going to be 4:8. Clear हुआ? Coordination number 4 मतलब कैल्शियम के 4 यूनिट्स और फ्लोराइड आयन्स आपके पास 8 होंगे। क्लियर? दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा 4:8, isn't it? अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूंगा तो एग्जांपल्स मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, तो एग्जांपल मेरे पास है बेरियम फ्लोराइड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रोशियम क्लोराइड,
सिट्रोशियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, एंड आई हैव वन मोर एग्जांपल दैट्स कैल्शियम फ्लोराइड। दीज आर द एग्जांपल्स। क्लियर। तो उसके बाद मेरे पास आ रहा है एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। दैट्स एग्जांपल ऑफ Na2O। एंटीफ्लोराइड मीन्स दिस, इसका जस्ट अपोजिट। तो देखो, इट आल्सो अंडरगो CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ भी CCP आता है। CCP मतलब Z इज इक्वल टू 4। तो अब देखेंगे यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ आयन है। वी हैव Na प्लस आयन्स एंड वी हैव ऑक्सीजन O2 माइनस आयन्स, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास Na प्लस आयन्स हैं, दे ऑक्यूपाई एवरी टेट्राहेड्रल साइड, दे आर प्रेजेंट एट ईच टेट्राहेड्रल पोजीशन, मतलब दे आर प्रेजेंट, दे ऑक्यूपाई ईच टेट्राहेड्रल वाइड, वी टेट्राहेड्रल। अब हमारे पास CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, Z इज इक्वल टू 4 है, तो टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 8, दिस इज वी टेट्राहेड्रल, मतलब हमारे पास सोडियम आयन जो होंगे इनका नंबर 8 होगा। अब जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन आयन्स हैं, दे फॉर्म CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट। CCP मीन्स Z इज इक्वल टू 4, सो ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स हैं। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे पास सोडियम है, हमारे पास O2 माइनस है, दिस विल बी ट्वाइस सोडियम माइनस, इजंट इट। हमारे पास सोडियम माइनस है, हमारे पास ऑक्सीजन आयन्स है, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन आयन्स आर देयर, देयर आर 4। हाउ मेनी सोडियम आयन्स आर देयर, देयर आर 8। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज 8:4। यहाँ पे क्या मिल रहा था, 4:8, यहाँ पे 8:4, मतलब इसका अपोजिट। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। तभी तो इस स्ट्रक्चर को एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे, एग्जांपल्स आर ऑक्साइड्स। किसकी ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल्स। बहुत ही सिंपल है। एंड इनके सल्फाइड्स, लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड एंड पोटेशियम सल्फाइड। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ हमारे पास ये जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर के एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे। it can undergo CCP type of arrangement, it can sometimes also undergo HCP type of arrangement, hexagonal close pack। तो HCP का थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, isn't it? तो HCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट जब होगा इसमें, तब इसको वुडसाइड स्ट्रक्चर कहते हैं, वुडसाइड। लेकिन जब CCP टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसका होगा, इट इज नोन एज स्फेलेराइट, स्फेलेराइट, isn't it? This is another geometry, means जो आपका जिंक ब्लेंड है, it exists in 2 geometries, either sphalerite in which it undergoes CCP type of arrangement, or it exists in woodside structure in which it undergoes HCP type of arrangement। क्लियर हुआ ये, in which it undergoes HCP type of arrangement। तो यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो कि जिंक ब्लेंड में हमारे पास ये वाले एटम्स हैं। अब देखेंगे ये एटम्स कहाँ कहाँ पे है, जो मैं आपको भूल गया यहाँ पे कहने को, कि हमारे पास जिंक 2 प्लस आयन्स होते हैं और हमारे पास सल्फाइड आयन्स होते हैं। ये जो हमारे पास जिंक 2 प्लस आयन्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो बता कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स है, Z इज इक्वल टू 4, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स। 8 का 50% मतलब 1/2 into 8, 50% मीन्स 50/100, दैट्स 1/2, मतलब जिंक हमारे पास 4 होंगे। एंड सल्फाइड आयन्स दे फॉर्म CCP टाइप ऑफ प्लेट्स, मतलब ये भी 4 होंगे, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का सेशन जो था, दिस वाज अ वेरी ऑसम सेशन। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील कर रहे थे, हाउ टू नो दिस स्ट्रक्चर्स, तो इनकी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे की। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, कीप सपोर्टिंग, keep like share and subscribe the channel, share with your friends so that each and every student may come to know about Chem Lover classes. Thank you.